سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پہلا برج حمل ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گا، آپ کو اس ہفتے کچھ ذمہ داریاں، کچھ رسپانسبلٹی شیئر کرنی پڑے گی، خاص طور پر آپ کی ڈومیسٹک لائف کے حوالے سے بھی، جو آپ کو آلریڈی آپ نبھا رہے ہیں یا آپ کو مل سکتی ہے۔ اور جو بزنس سے ریلیٹڈ ایریز لوگ ہیں ان کو اپنے فائنینشیل میٹرز کو خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور آپ کو اگر فیوچر میں اپنے لیے فائنینشیل اچھی پلاننگ کرنی ہے تو آپ کو ایک توجہ مرکوز کر کے اس پہ لائعمل بنانا پڑے گا۔ آپ نے یہ جو اب چل رہا ہے ٹائم، کیونکہ وینس اور مرکری کی جو پوزیشن ہے نا، اب انویسٹمنٹ میں آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ کوئی بھی اسپیکولیشن والا کام، کوئی اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو، ان چیزوں میں بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا، اور اپنی لگژری والی چیزیں جس میں گاڑی بھی آ جاتی ہے، جس میں وہیکل بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، وہیکل جب میں کہتا ہوں تو اس میں موٹر سائیکل، کار، یہی عموماً وہیکل ہوتی ہے۔ اب سائیکل تو کتنے لوگ یوز کرتے ہوں گے، تو یہ جنرلی سب کے لیے بتا رہا ہوں، کیونکہ وینس کی پوزیشن کچھ ایسی بن رہی ہے جو یہ اب تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے۔ دوسرا، ایک اور بات، میڈیا پرسن، وہ لوگ جو ماس کمیونیکیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ اسکینڈل بن سکتے ہیں، پرابلم آ سکتی ہے، تو یہ ایک جنرلی سب کے لیے ہے۔ یہ میں شروع میں ہی بول دیا، اس کو ہر آدمی چاہے وہ کسی بھی برج کا ہو اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں ایریز، ان کے لیے کوئی ایز پر ڈیزائر کوئی ٹرانسفر، کوئی پوسٹنگ ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اپنے ان لاز کے ساتھ تعلقات کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ڈومیسٹک ٹریولنگ ہو آپ کی، کچھ رکی ہوئی، پھنسی ہوئی، اٹکی ہوئی جو آپ کی رقم ہے وہ آپ کو شاید واپس مل جائے۔ دوسرا، آپ کو مل جل کر اور اپنے لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ہی اپنے مسئلوں کا حل نکالنا ہوگا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو کوئی شادی بیاہ، کوئی خوشی کی تقریب میں شرکت کا مواقع میسر آئیں۔ بچوں کو، جو ایریز خاص طور پہ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو اپنی تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی آپ نے کسی سے کوئی کمٹمنٹ کی ہے تو اس کو کوشش کیجیے گا کہ وہ وقت پر پوری ہو جائے، تاکہ آپ کے لیے مستقبل میں ایک اچھی ریپوٹیشن بننے کی جو ہے بنیاد پڑ جائے۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایریز والوں کو اس وقت تھوڑا سا اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ صحت میں کیا، میں نے بہت پہلے بتائی تھی جب میں نے کہا تھا پانی آئے گا، یہ آئے گا، ڈینگی، جلدی امراض، گیسٹرو، یہ چیزیں بڑھیں گی۔ لیکن ایک خاص طور پر آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی کھانے پینے کے معاملے میں آپ نے بد احتیاطی نہیں کرنی، نہیں تو وہ آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہے۔ البتہ فائنینشیل کچھ چیزیں آپ کی بحکم اللہ بہتر ہونے کے امکان نظر آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ ہو بھی جائیں، کیونکہ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، یقیناً اس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ میں اپنا علمی اندازہ شیئر کرتا ہوں، باقی ہونا نہ ہونا میرے مالک کائنات کے اختیار میں۔ اب ہے ہمارا دوسرا برج، برج ثور، ٹورس۔ ٹورس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، آپ کے پرابلم کچھ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے لک بھی آپ کو فیور کرے گا۔ اور جو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ان کی کوئی کمٹمنٹ پوری ہو جائے یا آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ کچھ آپ کے فیملی میں مسائل پیدا ہوں گے، لیکن آپ اس کا حل نکال لیں گے بحکم اللہ، اور آپ اپنے بزنس کی ایلیویشن یا اس کی انہینسمنٹ کا کوئی نہ کوئی سلسلہ بھی آپ کا بن سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کا یہ ذرا خیال رکھیے گا، قریبی رشتہ داروں میں کوئی خواہ مخواہ آپ کے گھر میں بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تو یہ خیال رکھ لیجیے گا۔ اور خواتین ٹورس جو ہیں، وہ ذرا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی انگیجمنٹ اپنے گھریلو معاملات میں اچھی خاصی بڑھے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس ہفتے اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے تو اس کا کسی حد تک ازالہ ہو جائے۔
اور کوئی سفر کے امکان بھی آپ کے بن سکتے ہیں. آپ کو کوئی بندہ ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا مگر انشاءاللہ کر نہیں پائے گا. اور آپ نے کسی کی بھی بات پہ بلا تصدیق کوئی اس کو اہمیت نہیں دینی. اسٹوڈنٹ عورت جو ہیں ان کے لیے اچھا ٹائم ہے. آپ محنت کریں, آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے, قسمت کی سپورٹ ملے گی. تھوڑا سا صحت کا خیال رکھیے گا. ہو سکتا ہے اچانک کوئی آپ کو سفر کی ضرورت پڑے, شادی کے حوالے سے یا منگنی کے حوالے سے کوئی ہل جل ہو سکتی ہے آپ کی. اور میں جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ٹورس, ان کو کہوں گا اپنا انٹرنل پالیٹکس سے دور رہیے گا, ورنہ خواہ آپ کو بدنامی پلے پڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی حالات میں آپ کو تھوڑی سی رکاوٹ آبسٹیکل محسوس ہو تو گھبرائیے گا مت. انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بحکم اللہ بہتر ہو جائیں گی اور کچھ نہ کچھ اپرچونیٹیز آپ کو ملے گی. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کوئی عزیز, کوئی رشتہ دار, کوئی دوست کے لیے آپ ہاسپٹل یا اس کے گھر پہ عیادت کے لیے جائیں, اس بات کا ہلکا سا امکان ہے. تیسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج جوزا جمنائی. میں یہ کہوں گا یہ ویک آپ کے لیے کافی مصروفیت کا حامل ہوگا. کوئی بندہ, کوئی دوست آپ کے لیے کوئی وقتی طور پر پرابلم کر سکتا ہے, اور آپ کو اپنے خفیہ دشمن جو جونما گندم فروش جو ہوتے ہیں, جو منافقت کرنے والے, ان سے ذرا دور رہنے کی ضرورت ہے. اور ان کی مکر و فریب کے اوپر اپنی سرویلنس رکھیے گا. کوئی تقریب میں شرکت کا مواقع مل سکتے ہیں آپ کو. اور یہ بھی امکان ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی امید وابستہ کی ہے, امید تو خیر اللہ سے وابستہ کرنی چاہیے, لیکن انسانی عقل کے حوالے سے یا انسانی وسائل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, وہ پوری ہو سکتی ہے. اور آپ کے کوئی بچے کے حوالے سے کوئی آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس کا باہر تعلیم کے حوالے سے جانے کا معاملہ جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خاندان میں اچھی خبر آ سکتی ہے. اگر آپ اپنے رشتے کے متلاشی ہیں تو اس کے لیے کوششیں شروع کریں. اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کے سامنے کوئی نیا منصوبہ بندی آئے بزنس کے حوالے سے, تو اس کو غور ضرور کیجیے گا. اور اپنے آپ کو جو فضول کام ہے ان میں اپنی انرجی کو ضائع مت کیجیے گا. اگر آپ نے اپنے فوکسنگ کو اچھا رکھا تو ضرور انشاءاللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ہو جائے گی. اور بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ آپ کی کچھ مصروفیات بھی رہیں گی پازیٹیو وے میں. اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا ہیلتھ کے معاملے میں بخار یعنی فیور یا تھروٹ انفیکشن اس کے ہونے کے امکان بن سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ہاں, وہ جیمنائی لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو تھوڑا سا فلکچویشن کا شکار ہو سکتا ہے ان کا بلڈ پریشر, اور مالی لحاظ سے ٹھیک ہے, برا نہیں ہے آپ کے لیے یہ ہفتہ. اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان کینسر. آپ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ جس کام کے لیے بہت عرصے سے سوچ رہے ہیں اس کے اوپر ایگزیکیوشن کیجیے, اور انشاءاللہ چاہے کوئی رکاوٹ ڈالے, چاہے کوئی اٹکاؤ پیدا کرے, لیکن انشاءاللہ بالآخر آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. آپ کے تعلقات میں, آپ کے ریلیشن میں ایک گرم جوشی پیدا ہوگی اور آپ کے کچھ مسائل کا حل نکل آئے گا. بیچلر یا ان میرڈ کینسیرین لوگ ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کوئی رشتہ آ سکتا ہے, کوئی پرپوزل کی بات چل سکتی ہے, کوئی ہل جل ہو سکتی ہے, کچھ نئے ذرائع آمدنی بھی پیدا ہو سکتے ہیں. فائنینشیل میٹرز کی ڈیلنگ میں آپ نے احتیاط رکھنی ہے, اور کوشش کریے گا کہ دستاویزی ثبوت اس کے ضرور بنائیں اگر کوئی مالی لین دین کر رہے ہیں, اور کچھ گواہان کو بھی شامل کر لیجئے. مستقبل میں آپ کو ہو سکتا ہے ان چیزوں کی ضرورت پڑے, اور ہو سکتا ہے پرانے دوستوں سے, پرانے بہت عرصے سے بچھڑے ہوئے رشتہ دار, ان سے اچانک ملاقات کا کوئی سبب آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائے, اس بات کا بھی امکان ہے. کچھ مجھے لگتا ہے گھر کی مشینری, وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے جس کے اندر کرنٹ کا معاملہ ہو, الیکٹرانک گیجٹس, الیکٹرانک کے ایکوپمنٹس, ان کی مرمت وغیرہ پہ آپ کے کچھ اخراجات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اور تھوڑا سا روحانیت اور مذہب کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا. اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا آپ کو کہ
इनकम के हवाले से कुछ बेहतरी नज़र आती है, आपके आमदनी के ज़राए नए बन सकते हैं। 5वां हमारा बुर्ज है बुर्ज असद लियो। लियो वालों को मैं ये कहूँगा कि थोड़ा-सा अपनी ग़िज़ा का ख़्याल रखिए, थोड़ा-सा थकावट, थोड़ी-सी स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में पैदा हो सकती है। उसकी वजह नाकाफ़ी नींद भी हो सकती है, उसकी वजह से आपको चेहरे पे कुछ उसके असरात नुमायाँ होते नज़र आएँगे। अब वो झाइयों की शक्ल में आएँ या वो कोई और शक्ल में आएँ, तो इसका ज़रा ख़्याल रखिए। हाँ, लियो वालों के लिए अगर आप बे-औलाद हैं, तो कोई अच्छी खबर मिल सकती है आपको, और आपको अगर किसी अपने सीनियर फैमिली मेंबर या घर के या ख़ानदान के सीनियर लोगों के साथ कोई इख्तिलाफ़ात पैदा हो रहे हैं, तो उनमें बेहतरी या उनमें पॉज़िटिव चेंज आने का इम्कान है। आपने किसी भी चीज़ पर जज़्बाती नहीं होना, बहुत इत्तेदाल पसंदी के साथ काम लेना है, और यही आपके लिए बेहतर होगा। अब्रॉड से बैरून मुल्क आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, और अलबत्ता ये है कि इन-लॉज़ ससुराल वालों की तरफ से आपको ज़रा-सी मुखालफत, अपोज़िशन और उनके कुछ आपके साथ मामलात में गड़बड़ पैदा होती नज़र आती है। कोई घर में तकरीब भी हो सकती है पॉज़िटिव, जिससे आपके रिश्तेदार आने का सबब बने घर में बैठने का, और सफ़र के इम्कान बन रहे हैं आपके। अगर आप चाहें तो उस सफ़र की प्लानिंग कर सकते हैं। अपनी सेहत का ख़्याल रखिएगा, और ख़ास तौर पे मैं लियो ख़वातीन को ये कहूँगा कि अपने हार्मोन्स का ख़्याल रखिएगा, उनमें कुछ गड़बड़ पैदा हो सकती है। दोस्तों से मुलाकात, दोस्तों के साथ इंटरैक्शन आपका बढ़ेगा, और फाइनेंशियल चीज़ें किसी हद तक बेहतर रहेंगी। अलबत्ता अगर बैरून मुल्क से सफ़र या आमदनी का ताल्लुक़ है, तो उसमें बहुक्म अल्लाह कामयाबी पैदा हो सकती है। छठा हमारा बुर्ज है बुर्ज शुमला विर्गो। विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा कि ज़रा-सा अपने अखराजात को कंट्रोल कीजिए, वरना फ्यूचर में आपको मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अगर आप अपने कारोबार को वसअत देने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें बढ़ोतरी चाह रहे हैं, तो उसकी मनसूबाबंदी कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगी। कोई विर्गो कपल के अंदर, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, अगर कोई आपकी कोई नाचाकी हो गई थी या कोई झगड़ा हो गया था, तो उसमें बेहतरी होने का इम्कान है। सुलह भी हो सकती है, कोई लोग बीच में बैठ के उसको जो है मीडिएट कर सकते हैं। तालीम के हवाले से स्टूडेंट जो हैं बिल्कुल, उनको मैं कहूँगा थोड़ा-सा आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी अगर आपने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया, और थोड़ा-सा अगर विर्गो वालिदैन हैं, तो आपको अपने बच्चों की तालीम की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा विर्गो लोगों को थोड़ा-सा आधे सर का दर्द, माइग्रेन जिसे कहते हैं, या सर में दर्द की शिकायत हो सकती है, और अगर आप सर्वाइकल के मरीज़ हैं, तो उसका भी ख़्याल रखिएगा। कोई अल्लाह ना करे कोई ख़ानदान में, रिलेटिव में कोई थोड़ी-सी बैड न्यूज़ आ सकती है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें हर एक को, इसमें से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बिल्लों को, क्योंकि ये एक जर्नल बना रहा हूँ। इसके अलावा आपको थोड़ा-सा गलतफ़हमी पैदा होने का, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के साथ डेवलप हो सकती है, उसका भी ख़्याल रखिएगा। अलबत्ता ये हो सकता है अब्रॉड से कोई अच्छी खबर आपको नसीब हो, और सफ़र के मुस्तक़बिल में मौक़े पेश आएँ। अलबत्ता फ़ाइनेंशियल चीज़ों में एक स्टेटस को वाली पोज़ीशन रहेगी, या जैसा चल रहा है मामला ज्यों का त्यों वैसा चलेगा। अलबत्ता अगर आप प्रॉपर्टी के हवाले से कोई डील करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कामयाबी नसीब हो सकती है बहुक्म अल्लाह। 7वां हमारा बुर्ज है बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगा, रोमांटिसिज़्म आप में बढ़ेगा। ये भी हो सकता है कि आपको अपने रोमानवी मामलात में थोड़ी-सी डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, और कुछ फाइनेंशियल चीज़ें आपकी गड़बड़ कर सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहीं न कहीं से मदद आपकी करा देगा। सेहत का ख़्याल रखिए, और ख़ास तौर पे अगर पेट में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो फ़ौरी तवज्जो का तालिब होगा आपके लिए। अगर आपके मैट्रिमोनियल लाइफ़ के अंदर, यानी शादीशुदा ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम पैदा हो गए, तो उसमें कुछ न कुछ वक़्ती तौर पे बेहतरी आ जाएगी। आपके
कोई सफ़र के इम्कान भी बन सकते हैं, वो दोनों किस्म के हो सकते हैं, वो डोमेस्टिक भी हो सकता है अंदरूनी मुल्क, और वो अब्रॉड यानी बैरून मुल्क का भी हो सकता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि किसी पुराने साथी दोस्त से मुलाकात होगी, हो सकता है किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी से आपको कुछ सपोर्ट मिल जाए, और अगर आप बैरून मुल्क जाके रिहाइश पज़ीर होना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। मगर कोई भी स्टेप उठाने से पहले अपने वसाइल की तरफ ज़रूर तवज्जो दे लीजिएगा, घरेलू माहौल को बेहतर रखें। आपको मैंने जो अर्ज़ किया है फाइनेंशियल मैटर, उस पे ज़रा आपको टेक केयर करनी है। हो सकता है आपकी गाड़ी या बाइक के अंदर कोई अखराजात आपको अचानक दरपेश आएँ, तो उन चीज़ों का भी ख़्याल रखिएगा, और अपने ख़ानदानी मामलात में किसी किस्म की फूट, नाचाकी, ये कैफ़ियत अगर पैदा हो तो आपने इसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है, और वो आपके हक़ में बेहतर भी रहेगा। इसके बाद हमारा 8वां बुर्ज है, बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो। अगर आपके किसी के साथ ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हो गए, तो उसको रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, बेहतर करने की कोशिश कीजिए, और अगर थोड़ा कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े तो कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के वो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि कुछ राइवल आपके, कुछ हरीफ आपके, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो आपकी अपनी घरेलू ज़िंदगी हो, उसमें आपको थोड़ा-सा नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, मगर घबराइएगा नहीं, इंशाअल्लाह ताला फिर फ्यूचर में आपके लिए बेहतरी पैदा होना शुरू हो जाएगी। और कोई खामख़ा का अगर आपको स्कैंडलाइज़ या आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए, तो आपने उसका, अगर आप जायज़ हैं तो आप उसका दिफ़ा कीजिएगा, तो आपके लिए इंशाअल्लाह बेहतर रिज़ल्ट आएँगे। ये भी हो सकता है कि आपकी शादी, ब्याह, मंगनी के हवाले से कोई मस्बत पेशरफ़्त हो, या किसी जगह पे आप लोग जाएँ या कोई आपके घर में आए, और ये भी हो सकता है कि आपका कोई उसमें रिश्तेदार अगर पंगा करे, तो सुन ज़रूर लीजिएगा, लेकिन फ़ैसला अक़्ल व दानिश के साथ कीजिएगा। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई डील करने के लिए, कोई फाइनेंशियल मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क सफ़र की ज़रूरत पेश आ सकती है। इसके अलावा आपके जो बच्चों के मामलात हैं, आपके वालिदैन के मामलात हैं, उसमें आपको कुछ न कुछ बेहतरी महसूस होगी, और आपको ये महसूस होगा कि फाइनेंशियली कोई अचानक आपको सपोर्ट मिल सकती है, या आपकी कुछ आमदनी में इज़ाफ़ा हो सकता है। इसके बाद हमारा नवा बुर्ज है, बुर्ज क़ौस सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों को मैं ये कहूँगा, आपको फैमिली से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, आपके माली मामलात में बेहतरी आ सकती है, और किसी न किसी की आपको मुआवनत हासिल रहेगी। और एक मैं एडवाइस ये करूँगा, दूसरों के मामलात में दखल अंदाज़ी ना कीजिएगा, वरना खामख़ा आपके पल्ले सिवाय बुराई के और कुछ नहीं पड़ेगा। और ये भी हो सकता है आपका कोई बहुत पुराना रुका हुआ काम अचानक हो जाए, थोड़ी-सी नींद की कमी की शिकायत आपको हो सकती है, और जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला ना कीजिएगा। तहम्मुल के साथ और बड़ा सोच समझ के कोई स्टेप उठाइएगा, और मुझे लगता है ये कोई आपको नया असाइनमेंट, नया काम वो भी मिल सकता है। घरेलू जो ख़वातीन हैं सैजिटेरियस, उनके कामों में जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। अलबत्ता छुरी, चाकू का इस्तेमाल करते हुए ज़रा-सी एहतियात करनी है आपने, वरना कोई कट लगने का या कोई खून, ब्लीडिंग होने का इम्कान है। अच्छा, ये भी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ज़ाहिर है, हर ख़ातून के साथ रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक सिस्टम होता है, तो वो सिस्टम जो आपका एक, अगर इस हफ्ते में वो सिस्टम आता है, तो थोड़ी-सी आपको ब्लीडिंग एक्स्ट्रा होने का इम्कान बनेगा। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको औलाद नहीं हुई, तो अल्लाह ताला आपको औलाद की कोई खुशखबरी सुना सकता है। आपकी समाजी मसरूफ़ियात, आपकी सोशल, जिसे कहते हैं लाइफ़, उसमें इज़ाफ़ा होने का इम्कान है। कुछ ज़ाती मामलात में आपको थोड़ा-सा सँभल के चलना पड़ेगा, और ज़िद, हठधर्मी, जल्दबाज़ी, ये 3 एलिमेंट से दूर रहिएगा। और मुझे ये लगता है कि आपको अचानक कोई ऐसे बंदे या दोस्त से मुलाकात हो, जिससे मिल के आपको रूहानी खुशी हो, और अपने अंदर एक पॉज़िटिव फीलिंग्स आप महसूस करें। इसके बाद 10वां हमारा बुर्ज है, बुर्ज जल्दी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं ये कहूँगा कि
अगर आप किसी भी शोबे से हैं तो उसमें आपके लिए कोई मस्बत पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी हिकमत अमली पे गौर करना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट, कुछ एडिशनल ज़िम्मेदारियाँ आपको तफ़वीज़ की जा सकती हैं। और अगर आप कैप्रिकॉर्न जो हैं पॉलिटिक्स के हवाले से, तो कोई आपको छोटी-मोटी गुड न्यूज़ मिल सकती है। मगर अपनी कमर का ख़्याल रखिएगा, अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, वो कैप्रिकॉर्न लोग जिनको ब्लड प्रेशर, थ्रोम्बोसिस या हार्ट का मसला है, थ्रोम्बोसिस जो क्लॉट की बीमारी होती है, उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि अचानक कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाए जिससे आपकी सेहत के मामले में कोई मसला पैदा हो जाए। अपनी तवानाइयों को मुजतमा रखिएगा तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी रहेगी। लेकिन आप जो सोच रहे हैं या आप अगर वो चाह रहे हैं कि आपके ज़हन में कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो मुझे नहीं लगता उसमें आपको कोई खातिर ख़्वाह कामयाबी हो सकती है। हाँ, शॉर्ट टर्म प्लानिंग इस वक़्त आपकी बेहतर हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप जहाँ अरसे से आपका कोई सफ़र रुका हुआ हो या आप कहीं जाना चाह रहे हो, तो उसमें कोई मस्बत पेशरफ्त हो जाए। और आपको बहुत एहतियात करनी है, ख़ुसूसन अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से किसी पे अंधा भरोसा ना कीजिएगा, वरना डिसअपॉइंटमेंट होने का इम्कान है। इसके अलावा अपने फाइनेंशियल मैटर्स को भी ज़रा देखिए और उसमें ज़रा-सी अदम तवज्जो आपके लिए कोई खराबी का बाइस बन सकती है। और आपने जो भी काम करना है बहुत सोच समझ के करना है। मुझे डल एक्वेरियस एक्वेरियस वालों को ये कहूँगा, अभी तक किस्मत आपका साथ दे रही है, लेकिन आपको अपने प्रोफ़ेशनल मामलात में या आप किसी भी काम में मुंसलिक हों, आप लिबर्टी लेने की कोशिश ना कीजिएगा, वरना कोई ना कोई तीसरा आदमी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। और अपने वसाइल पे इक्तफ़ा कीजिए, क्योंकि इस वक़्त अगर आप कोई प्लानिंग करेंगे कि मैं ये काम कर लूँगा, ये काम कर लूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको वक़्ती तौर पे कोई कामयाबी होगी। और अगर आपके कोई रिश्तेदारों में या आपके दोस्तों के साथ कोई बदमज़गी पैदा हो गई है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और जो एक्वेरियस ख़वातीन हैं, उनको ज़हनी तौर पे थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहेंगी या ओवर स्ट्रेस फ़ील करेंगी। अलबत्ता कारोबारी अफ़राद जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, उनके लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। और ये भी हो सकता है कोई सफ़र, कोई होटलिंग, कोई सैर-ओ-सयाहत, इसके मौक़े आपको मैसर आएँ। वो लोग जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में चाहे सरकारी हों, चाहे प्राइवेट जॉब करते हों, उनको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। कोई पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व ना कीजिएगा, ख़ामख़ा के मसाइल पैदा हो जाएँगे। इसके अलावा आपको थोड़ा-सा अपने टाँगों का, अपने सर का और फ़ीवर का ख़्याल रखना है, ये मर्ज़ आपको दरपेश हो सकते हैं। और अगर आप पुराने डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और ये भी लग सकता है, ये महसूस होता है मुझे कि शायद आपका मेडिकल एक्सपेंसेस, कुछ हॉस्पिटलाइज़ेशन या मेडिकेशन पे कुछ अखराजात हों, इसके होने के इम्कान हैं। मगर एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मस्बत पेशरफ्त या मनसूबाबंदी आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आखिरी बुर्ज है, बुर्ज हूत पाइसेस। पाइसेस वालों को मैं ये कहूँगा, अपने घरेलू माहौल का ख़्याल रखें, अपने कमर के दर्द का ख़्याल रखें अगर आप कमर के मरीज़ हैं। और वो पाइसेस ख़वातीन जिनको जो शादीशुदा है, उनका हो सकता है इन-लॉज़ के साथ कोई छोटा-मोटा मसला पैदा हो। बुनियादी तौर पर आप एक जज़्बाती सेंसिटिव शख़्सियत के मालिक या मालकिन होती हैं, मगर आपको इस वक़्त जज़्बात से ज़्यादा अक़्ल और फ़हम के साथ काम लेना है। कुछ लोग पस पर्दा रहकर आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो ज़रा उसमें एहतियात कीजिए। और मीडिया के ऊपर, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे एक्सट्रीम मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक, आपको बहुत एहतियात के साथ अपनी ज़ुबान को गुफ्तगू करते वक्त इस्तेमाल करना है। और ये भी हो सकता है मज़हबी तकारीब में आपको जाने का मौका मिले, हो सकता है किसी रूहानी हस्ती से मुलाकात हो या ख्वाब में आपको कोई रूहानी हस्ती की बशारत या उनकी ज़ियारत नसीब हो। अगर आप
बैरून मुल्क कोई मज़हबी सफ़र करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा मौका है। कुछ शादी ब्याह मंगनी के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है और ये भी हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप में आपको अपॉर्चुनिटी मिले। अलबत्ता ये है कि कोई ऐसा डील या ऐसा आपका मामला तय हो सकता है जो कि लॉन्ग रन में आपके लिए फ़ायदे का बाइस बने। फाइनेंशियल चीज़ें बेहतर रहेंगी और अगर आपका कोई सीनियर फैमिली मेंबर, वालिद, बड़े भाई, बड़ी बहन, इनसे कोई छोटा-मोटा इख्तिलाफ़ पैदा हो सकता है और आपको सबसे ज़्यादा इसके बाद एक तो अपने ताल्लुकात और नंबर 2 पे अपनी सेहत का ख़्याल रखना है, ये ज़रा ख़्याल रखिएगा और ख़ास तौर पे थ्रोट का, स्किन का, डर्मेटोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका, या हो सकता है आपको बालों में कमज़ोरी की शिकायत पैदा हो।